Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 24 of the course Network Security. We are discussing how to incorporate security in different parts of the network. Let us first have a look on what we discussed in our previous lecture. So here is the summary. In previous lecture, we explored problems in message authentication. I have sent you a message, but later on, what will happen if I deny? And what if you have received a message and you are thinking that I have sent you the message, but actually I haven't? So how to authenticate the message? This is the main problem. And to answer this problem, we have got different solutions. We use digital signatures, and we also use sometime protocols that help us in message authentication. So we talked about how digital signatures could be used to address message authentication problem, and if you remember, we have discussed that digital signatures are like your paper signatures, which we usually do on papers or on some documents. Signing a document, writing your signature on a document ensures that you are the actual owner of this document. How and why? Because the signature, it uniquely identifies a person. If there are 20, 30, 40, 100 people or 1,000 people, each one will be having a unique signature. No two persons in the whole world can have a same signature. So signature is an entity which uniquely identifies a person, and if I have received a document which is signed by you and I recognize your signature, so this confirms that you are the actual sender of this document. The same concept has been applied in network security and to address the message authentication problem. That is, when I am going to send you a message or when you are going to send me a message, we both will digital sign the document. This digital signature confirms both you and me that we are the actual writer and we are the actual sender of this particular message. We talked about direct digital signature and arbitrated digital signature. In direct digital signature, there is no third party, there is no trusted party involved, while in arbitrated digital signature, we discussed how an arbitrary value can be used in order to perform the function of digital signature. We briefly discussed the message authentication protocol, one message authentication protocol, that is Needham-Schroeder protocol. So here, this was the summary of the previous lecture, and here is the outline of today's lecture. So we will continue our discussion on Needham-Schroeder protocol, and we will see its functionality, we'll see how it works. We will also have a discussion on digital signature standard, that is DSS, and digital signature algorithm, DSA. So what are these two entities? How are they similar or different? This is going to be part of our today's discussion, and importantly, we will talk about authentication applications. So we have been discussing authentication protocols, authentication functions. Today we will review authentication application, and more precisely we will talk about Kerberos, which is an authentication service that was developed at MIT. So here are the objectives of today's lecture. Inshallah, by the end of today's lecture, you would be able to present
and understanding of the higher level message authentication mechanism, and that is authentication protocol, and you would be able to demonstrate knowledge about different applications used for message authentication. So, if you are ready, let us begin by recalling the problem in message authentication, and that is message authentication protect two parties from third party. Will it protect two parties from each other? So I have sent you a message based on the shared key which only you and myself know. So using this shared key, we have ensured that no third party can read the message. But the problem here that we discussed was, what if I have sent you a message, or Alice has sent an authenticated message to Bob, and Alice used message authentication code MAC along with the message and sent to the Bob. So Bob may receive a different message and claims that it comes from Alice. So how will Bob ensure that the message coming is actually from Alice? Because Bob cannot physically see Alice. Alice is not physically adjacent or not physically present to Bob. So how will Bob ensure that the message which he has received, which Bob has received, has actually came from Alice? And later on, Alice can deny sending the message to Bob later on. Or vice versa, it can also happen that Alice has sent a message and later on she denies that she hasn't sent this message. So in order to deal with this message authentication protocol, the problem in this particular case, the problem in message authentication, we have sent a secure message which third party cannot read. But again, how to ensure that these are the actual two parties, the actual sender and receiver, who are expected in this particular conversation. So इसके लिए हमें authentication function with enhanced या additional capabilities इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है. मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आपने देख लिया, ठीक है. तो सिंपली आप क्या कोई मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शन काम नहीं कर सकता. मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शन तो सिर्फ मैसेज को इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है. आप दो टॉकिंग पार्टीज को कैसे कंफर्म कराएंगे, इसके लिए आपको एडिशनल कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं. सो डिजिटल सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हमारा सलूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पे ये बताता चलूँ कि यूज टू कन्विंस पार्टीज ऑफ ईच अदर्स आइडेंटिटी एंड टू एक्सचेंज सेशन कीज. आपकी सेशन की यूज होती है और ये सेशन की दो पार्टीज के दरमियान यूज होती है, और इस सेशन की को यूज करते हुए दो पार्टीज आपस में डेटा को एक्सचेंज कर रही हैं. So these two parties are using the session key for this particular session, for this particular dialogue, for this particular time, in order to send and receive messages. How the session key is exchanged, so that was discussed in our previous section when we talked about master and session key. So key issues of authenticated key exchange are confidentiality and timeliness. We want to prevent masquerading and to protect session keys. This is part of our secure communication, that we do not want to compromise the session keys.
because if the session keys have been compromised, the whole conversation, the whole ongoing dialogue will also be compromised. And the timeliness, this ensures that there are no replay attacks. The replay attack was one in which an attacker received the message, he stores the message for some time, and later on sends the same message to the receiver. Now, storing and later on sending the message can have different meaning, and I have discussed this with an example that I send you a message that see me, there is an emergency. See me right now, there is an emergency. The attacker, he or she saves this message and sends this message, let's say after 2 days or after 10 hours. So in this case, when you will receive the message, the context would have changed by now. Maybe at that time when I actually sent the message, there was emergency situation, but now when you have received the message, this emergency situation may have gone or may have been addressed, and you will reply or you will respond accordingly, and your reply was not expected at this time. So this replay attack can be very harmful, can be very destructive in our secure communication. So we talked about Needham-Schroeder protocol. We use an authentication protocol, and this particular Needham-Schroeder protocol actually has come from two scientists, two cryptographers, Roger Needham and Michel Schroeder. So they presented this message authentication protocol, and this particular protocol is not single protocol, it is actually two protocols. These are actually two protocols. What are these two protocols? One Needham protocol makes use of symmetric key, and the other Needham-Schroeder protocol makes use of public key. So the more details are, the Needham-Schroeder symmetric key protocol is based on symmetric encryption algorithm. The Needham symmetric key protocol is based on symmetric encryption algorithm, and it forms the basis for the Kerberos protocol. Remember that Kerberos is the message authentication application, and we will discuss this particular application later on in today's lecture. For time being, you can simply focus on this particular point, that this protocol aims to establish a session key between two parties on a network, typically to protect further communication. So the session key is established. The data has not exchanged yet between two parties. First, the session key will be established. Establishing the session key means that these two parties will make sure that before they start the actual communication, they have agreed on a session key. How the session key is exchanged, this is discussed in detail in Needham-Schroeder symmetric key protocol. The other part, or the second Needham-Schroeder public key protocol, is based on, as the name indicates, public key cryptography. So in their first protocol, they are making use of a centralized entity like KDC. But in the second protocol, in their second proposed protocol, Needham and Schroeder, they are using a public key cryptography. This protocol is intended to provide mutual authentication between two parties communicating on a network, but in its proposed form is insecure. The point here to note is that this public key protocol, Needham-Schroeder public key protocol, is different from the symmetric key protocol in the sense that it does not use a centralized entity like KDC. No third party is used in this particular protocol, and both the communicating parties establish a secure communication over a insecure
channel or over an insecure network. So here is the working of Needham-Schroeder protocol. Let us assume that Alice A initiates the communication to B, represented by B, and S is a server trusted by both parties. S could be a KDC, S could be any trusted third party, and here we are representing this particular server or third party as denoted by S. So in this communication, A and B are identities of Alice and Bob. A is representing Alice and B is representing Bob. K of AS is a symmetric key known only to A and S. Symmetric key means the same key which is shared by A and the server. So assume that here is A, here is B, and here is server S. Alice, Bob, and server S. So K of S is actually the master key, actually the shared symmetric key only known to S and A. Similarly, K of B of S is another key, another symmetric key which is known to B and S, Bob and the server. The fourth point here is N of A and N of B are nonces generated by A and B respectively. So N of A has been generated by Alice and N of B has been generated by Bob. So when Alice has generated a nonce, it is represented by N of A, and when Bob has generated a nonce, it is represented by N of B. Now you must remember that what nonces are. So nonces are usually an arbitrary value. It could be a number, it could be a pseudo-random number which is produced only once, which cannot be repeated, and we have been using nonces in computer security for secure communication, and different protocols makes use of nonces. So Needham-Schroeder protocol also makes use of nonces, and when Alice creates or generates a nonce, it is represented by N of A, and when Bob generates or creates a nonce, it is represented by N of B. And lastly, there is K of A and B. So K of A and B is symmetric generated key which will be the session key of the session between A and B. As the name indicates, this K of B is actually the session key which has been created by the server and which will be used by A and B for further communication. So these were some symbols. Now how actually this protocol works, let us have a look on this particular slide. So the protocol can be specified as follows in security protocol notations. So here we have discussed the notations. Now the actual working will be shown in this particular slide. So Alice sends a message to the server A of S, and which is responding to A, B, and N of A. So this means that Alice sends a message to the server identifying herself and Bob, telling the server she wants to communicate with Bob. So A and the arrowed label towards S is representing a function, is representing a feature or first step in Needham-Schroeder protocol, that A wants to communicate with B, but in order to establish a communication, the S must give session keys to both A and B, and to complete these steps, to complete this communication with B, the first step that
A will take is Alice sends a message to the server identifying herself and Bob. So A, B and N of A is actually identifying two parties. That is, A wants to communicate with B and A has also sent a nonce value, nonce of A. Now server responds to A. Server responds back to A. So A has sent a message to the server telling that it wants to communicate with B. A wants to communicate with B and has also sent nonce of A. The server replies back to A. And what does it do? The server generates K of AB and sends back to Alice a copy encrypted under K of B of S for Alice to forward to Bob and also a copy for Alice. Now here you must remember what were K of AB and what were K of BS. For your convenience and to make this recall, I'll go back and we'll see that K of AB and K of BS, these are the keys which are known only to B and S and A and B. So K of AB is a session key which will be generated by server. Server has actually generated a session key for A and B. Server has sent this particular session key to Alice to A and also a copy to Alice has been forwarded. Since Alice may be requesting keys for several different people, the nonce assures Alice that the message is fresh and the server is replying to that particular message, and the inclusion of Bob's name tells Alice who she is to share this key with. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है, दो स्टेप्स हमने अभी देखे हैं नीदम श्रोडर प्रोटोकॉल के, 3 स्टेप्स मजीद अगली स्लाइड में आएंगे. पहले स्टेप में ए ने सर्वर एस से रिक्वेस्ट की कि मैं बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये बी की आइडेंटिटी है और ये एक नॉन्स वैल्यू है. सर्वर ए को रिप्लाई करता है और सर्वर एक सेशन की जनरेट करके देता है. के ऑफ ए बी एक सेशन की जनरेट करके देता है और अलाइस को इस सेशन की कॉपी भेजता है. क्योंकि अलाइस ने सर्वर के साथ सिर्फ बॉब से रिक्वेस्ट करने की, सिर्फ बॉब से कम्युनिकेशन करने की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि अलाइस एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट मजीद लोगों से भी बात कर सकती है. इसलिए सर्वर ने अलाइस को ये इंश्योर करना होता है कि जो सेशन की इसने भेजी है वो फ्रेश है, प्लस ये कि जो नॉन्स अलाइस ने सर्वर को भेजा था, ठीक है, वो भी कैलकुलेटेड है, उसको भी रिप्लाई किया गया है. और बॉब का नाम जो पहले स्टेप में हमने देखा था, बॉब का नाम इसलिए शामिल है कि सर्वर बता रहा है कि ये सेशन की किसी और लेजिटिमेट यूजर से बात करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती, बल्कि ये सेशन की सिर्फ बॉब के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है. तो ये 2 स्टेप्स यहां पे परफॉर्म होते हैं. मजीद क्या 3 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, आइए यहां पर देखते हैं. ए बी को रिप्लाई करता है. ए बी को एक्चुअली वो सेशन की भेजता है. अलाइस फॉरवर्ड्स द की टू बॉब हु कैन डिक्रिप्ट इट विद द की ही शेयर्स विद द सर्वर, thus authenticating the data. सो एक की है जो कि अलाइस और बॉब के, एक की है जो कि अलाइस और सर्वर के दरमियान शेयर्ड है, एक की है जो कि बॉब और सर्वर के दरमियान शेयर्ड है. अब अलाइस ने बॉब को एक सेशन की भेजी है, लेकिन ये सेशन की इनक्रिप्टेड है. ये सेशन की कैसे डिक्रिप्ट होगी? बॉब
जब उस की को यूज करेगा जो कि उसके और सर्वर के दरमियान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैसेज डिक्रिप्ट होगा, और जब ये सक्सेसफुल डिक्रिप्ट हो जाए इसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो ऑथेंटिकेट हो गया है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब बॉब वापस अलाइस को रिप्लाई करता है। बॉब सेंड्स अलाइस अ नॉन्स encrypting under key of AB to show that he has the key। अब यहां तक की एक्सचेंज हो चुकी है, पिछले स्टेप तक की एक्सचेंज हो चुकी है। सबसे पहले अलाइस ने सर्वर को रिक्वेस्ट की, सर्वर ने मास्टर की को यूज करते हुए की एक भेजी, सेशन की भेजी। ये सेशन की अलाइस ने एनक्रिप्ट करते हुए बॉब को भेजी, और बॉब ने इसको उस की को इस्तेमाल करते हुए डिक्रिप्ट किया जो कि बॉब और सर्वर के दरमियान है। यहां तक सेशन कीज एक्सचेंज हो गई हैं। आगे ये अलाइस और बॉब आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मजीद 2 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये जो सेशन की है ये कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, ये किसी अटैकर को नहीं पता चली, या ये किसी अटैकर की तरफ से ये सेशन की नहीं आई। सो बॉब क्या करता है, बॉब उस सेशन की को यूज करते हुए एक मैसेज एनक्रिप्ट करता है और अलाइस को भेजता है। बॉब ने एक नॉन्स क्रिएट किया, नॉन्स जनरेट किया और अलाइस को भेजा, ठीक है। अलाइस ने इस नॉन्स को रिकैलकुलेट करना है और रिप्लाई करना है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है इसका मतलब यह है कि ए और बी के दरमियान सेम सेशन की यूज हो रही है, और ए और बी अब दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये कि ये सेशन की किसी थर्ड पार्टी को नहीं पता या कोई अटैकर की तरफ से ये की नहीं आ रही। सो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अलाइस परफॉर्म्स अ सिंपल ऑपरेशन ऑन द नॉन्स। ये नॉन्स जो बॉब ने भेजा था सेशन की को यूज करते हुए, अब अलाइस इस नॉन्स पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, री इनक्रिप्ट्स इट एंड सेंड्स इट बैक वेरीफाइंग दैट शी इज स्टिल अलाइव एंड दैट शी होल्ड्स द की। अब इसने अलाइस ने जो बॉब की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, बॉब की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है उसी को रिप्लाई करना है। जो नॉन्स जनरेट करके अलाइस के पास आया था इसी का रिप्लाई करना है, और ये रिप्लाई एक्चुअली बॉब को बताता है कि अलाइस स्टिल अलाइव है और यही की अलाइस के पास भी है। सो ये 5 स्टेप नीदम श्रोडर प्रोटोकॉल में परफॉर्म होते हैं। पहले में की एक्सचेंज होता है, उसके बाद दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करती हैं। ये 5 स्टेप्स याद रखिए कि अभी डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए नहीं थे, बल्कि ये एक दूसरे को और कीज को एक्सचेंज करने के लिए थे। जब ये 5 स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद एक्चुअल कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। सो ये 5 स्टेप्स बड़े सिंपल थे, मैं फिर बता देता हूं आपको। 3 पार्टीज हैं, सर्वर, अलाइस और बॉब। एक की है जो कि सर्वर और अलाइस को पता है, एक की है जो कि सर्वर और बॉब को पता है। जब भी अलाइस और बॉब आपस में बात करना चाहते हैं ये थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते और इनको नहीं पता कि रादर अलाइस बॉब को मैसेज भेजे वो बॉब को लिए ही जाता है या किसी अटैकर के पास या मैन इन द मिडल के पास जा रहा है। सो इस चीज से बचने के लिए नीदम श्रोडर प्रोटोकॉल हमें यह बताता है कि सबसे पहले अलाइस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगी और उसमें यह कहेगी कि मैं बॉब के साथ बात करना चाहती हूं, मैं अलाइस हूं, मैं बॉब के साथ बात करना चाहती हूं, और ये नॉन्स वैल्यू है। सर्वर उस की को यूज करते हुए जो कि अलाइस और बॉब को पता थी, सेशन की एक कॉपी अलाइस को भेजता है और सेशन की एक कॉपी बॉब को भी भेजता है। इसके बाद अलाइस ये सेशन की बॉब को भेजती है। बॉब इस सेशन की को डिक्रिप्ट करता है। कैसे डिक्रिप्ट करता है? उस की के थ्रू जो कि बॉब और सर्वर के दरमियान शेयर्ड है, ठीक है। यहां तक सेशन कीज एक्सचेंज हो गई, अलाइस और बॉब एक दूसरे के साथ अब बात कर सकते हैं। लेकिन
मज़ीद 2 स्टेप्स इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं ताकि जो एक्चुअल सेशन की है उसको भी कंफर्म किया जाए कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ये किसी अटैकर या रीप्ले की तरफ से रीप्ले अटैक इस पे नहीं है। उसमें क्या है कि 4th स्टेप में आपका बॉब जो है वो अलाइस को एक नॉन्स भेजता है। ये भी हो सकता है कि अलाइस और बॉब कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और बॉब ने जब अलाइस को कोई मैसेज भेजा तो अलाइस एट दैट टाइम जा चुकी हो और ये मैसेज कोई अटैकर रिसीव कर रहा हो। सो इस चीज को इंश्योर करने के लिए बॉब अलाइस को एक मैसेज भेजता है और एक नॉन्स क्रिएट करता है। अलाइस इसी नॉन्स का रिप्लाई करती है और कंफर्म करती है कि यस आई एम स्टिल देयर एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम की। ठीक है, ये 5 स्टेप्स परफॉर्म जब होते हैं सो इट कंफर्म्स दैट नाउ बोथ 2 parties A and B can communicate with each other securely. So this is Needham-Schroeder protocol using symmetric key cryptography. मजीद Needham-Schroeder protocol के बारे में चंद पॉइंट्स ये हैं। Used to securely distribute a new session key for communications between A and B. प्रॉब्लम असल में ये था, ये चैलेंजिंग टास्क ये था कि A एंड B ने आपस में किसी की को एक्सचेंज करते हुए मैसेज एक्सचेंज करना है, कम्युनिकेशन करनी है। लेकिन ये की कैसे एक्सचेंज होगी? ये की का एक्सचेंज होना, की का सिक्योरली एक्सचेंज होना ये बहुत जरूरी है। अगर A और B डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें और वहीं पे अगर की एक्सचेंज कर रहे हैं तो मैन इन द मिडल है, ये अटैकर वो की को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं और ऑनगोइंग सारी कन्वर्सेशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। ए और बी ईव्सड्रॉपिंग हो सकती है और जो की एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है, वो की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसीलिए ये ए और बी डायरेक्टली की एक्सचेंज नहीं करते बल्कि थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व करते हैं। वो थर्ड पार्टी यूजिंग सर्टन स्टेप्स, यूजिंग सर्टन प्रोटोकॉल्स एंड सम नोटेशंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स, मास्टर और सेशन की को यूज करते हुए दोनों पार्टीज के दरमियान सेशन की एक्सचेंज करवाती है। याद रखिएगा, ये सेशन की ए और बी के दरमियान लाइफ टाइम नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर सेशन के लिए या एक पर्टिकुलर डायलॉग के लिए है। इट इज vulnerable to replay attack if an old session key has been compromised. Needham-Schroeder प्रोटोकॉल में एक वल्नरेबिलिटी है कि अगर ओल्ड सेशन की आ गई है, ठीक है, अगर ओल्ड सेशन की बॉब ने रिसीव की है जो कि समझ रहा है कि अलाइज की तरफ से है लेकिन वो एक्चुअली एक अटैकर की तरफ से है, ठीक है। अब अगर ये सेशन की, इस सेशन की को यूज करते हुए बॉब एक नॉन्स क्रिएट करता है, 4th स्टेप जो था हमारा, और अलाइज को भेजता है, और अगर अलाइज के पास पिछली सेशन कीज के रिकॉर्ड नहीं है सो अलाइज कंपेयर नहीं कर सकेगी कि ये सेशन की पहले यूज हुई है या नहीं हुई। इन दैट केस ये अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन टू एड्रेस दिस रिक्वायर, अब इस पर्टिकुलर रीप्ले अटैक से बचने के लिए हमारे पास कुछ मजीद प्रोटोकॉल्स हैं या मजीद मॉडिफिकेशंस हैं जो कि नीदम-श्रोएडर प्रोटोकॉल पर अप्लाई होती हैं, ठीक है। ये 2 सॉल्यूशंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर रीप्ले अटैक ऑफ ओल्ड सेशन की के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम 2 किस्म के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। एक टाइम स्टैंपिंग डैनिंग 81 प्रोटोकॉल से और एक यूजिंग एन एक्स्ट्रा नॉन्स न्यूमन 93 के प्रोटोकॉल को यूज करने से। सो ये दोनों इंप्रूव्ड वर्जन्स हैं नीदम-श्रोएडर प्रोटोकॉल के, ये दोनों मॉडिफिकेशंस हैं नीदम-श्रोएडर प्रोटोकॉल के। पब्लिक की इंक्रिप्शन अप्रोचेस की अगर बात करें सो इससे पहले हमने प्राइवेट की इंक्रिप्शन की बात की। नीदम-श्रोएडर प्रोटोकॉल एक प्राइवेट की इंक्रिप्शन की बात कर रहा था। सो अगर पब्लिक की इंक्रिप्शन अप्रोचेस की बात करें सो हैव अ रेंज ऑफ अप्रोचेस बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन। पब्लिक की में हमारे पास ढेर सारी वैरायटीज हैं, क्योंकि आप एक सर्वर एस बीच में नहीं ला रहे और मास्टर और सेशन की आपकी सर्वर की तरफ से नहीं आ रही, तो हमारे पास पब्लिक की में ढेर सारी वेरिएशंस हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पब्लिक की इंक्रिप्शन में वो ये है कि नीड टू इंश्योर हैव करेक्ट पब्लिक कीज फॉर अदर पार्टीज, ठीक है। आपने ये इंश्योर करना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि आप जिस की पब्लिक की यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल उसी यूजर की पब्लिक की है। ऐसा ना हो कि आप किसी अटैकर की पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज एनक्रिप्ट कर रहे हैं, वो अटैकर अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए मैसेज डिक्रिप्ट कर लेगा। सो वी नीड टू इंश्योर दैट एवरी यूजर, if he or she, Alice or Bob, every user, if they want to other users, they have the correct public key of the other party. Using a central authentication server, आप करेक्ट पब्लिक कीज को ये इंश्योर करने के लिए कि करेक्ट पब्लिक की आपके पास है, आप एक ऑथेंटिकेशन सर्वर भी यूज कर सकते हैं। इस ऑथेंटिकेशन सर्वर का काम कीज एक्सचेंज करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपके पास करेक्ट पब्लिक की है या नहीं है। और ढेर सारे हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, वेरियस प्रोटोकॉल एग्जिस्ट दैट यूज टाइम स्टैम्प्स और नॉनसेस। ठीक है, नॉनसेस के बारे में भी आपको डिटेल में बता दिया, टाइम स्टैम्प के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि हर मैसेज के साथ एक टाइम स्टैम्प लग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है तो उस मैसेज पर टाइम स्टैम्प होती है, ये मैसेज दोपहर 1:15 और इस तारीख को रिसीव हुआ है। अब ये मैसेज अपने टाइम स्टैम्प की वजह से यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। अगर सेम मैसेज आपको कोई रीसेंड कर रहा है, ठीक है, उसका टाइम स्टैम्प डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में 1:15 उस तारीख को दोबारा नहीं आएंगे। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि 23 जून 2015 13 hours and 15 minutes। अब ये टाइम स्टैम्प जिंदगी भर दोबारा नहीं आएगी। सो दिस 23 June 2015 and 13 hours and 15 minutes will not come back in the entire life. So this time stamp will distinguish two messages even if the contents are same. So इसलिए हम टाइम स्टैम्प को भी यूज करते हैं। डैनिंग प्रोटोकॉल की मैंने बात की। डैनिंग प्रोटोकॉल मॉडिफिकेशन है, एक फर्दर इंप्रूव प्रोटोकॉल है जो कि ओल्ड सेशन की के रीप्ले अटैक से बचने के लिए यूज किया जाता है। डैनिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, सेशन की इज चोजन बाय ए। सो इंस्टेंट आपको सेशन की सर्वर एस दे, सेशन की ए ही सेलेक्ट करता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर जस्ट प्रोवाइड पब्लिक की सर्टिफिकेट। ऑथेंटिकेशन सर्वर जो थर्ड पार्टी सर्वर था बीच में, वो सिर्फ एक पब्लिक की सर्टिफिकेट देता है या मास्टर की सर्टिफिकेट देता है। एंड इंपॉर्टेंटली टाइम स्टैम्प्स प्रिवेंट रीप्ले बट रिक्वायर्ड सिंक्रोनाइज क्लॉक्स। ठीक है, अब अलाइज ने बॉब को एक सेशन की भेजी, ये सेशन की लेटेस्ट है या पुरानी सेशन की को यूज करते हुए एक अटैक किया गया है। इसको कैसे रोका जाता है, टाइम स्टैम्प के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक सेशन की अलाइस ने बॉब को भेजी है, ये सेशन की के साथ आप अलाइस जो है वो एक टाइम स्टैम्प लगा देती है कि ये सेशन की 23 जून 2015 13 hours and 15 minutes को भेजी गई है और ये सिर्फ अगले 10 मिनट या अगले 5 मिनट के लिए काम करेगी। अब बॉब जब इस की को रिसीव करता है तो पहले देखता है कि क्या ये क्लॉक मेरी और सेंडर की क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है। ऐसा ना हो कि अलाइस के पास 23 जून 2015 हो और बॉब के पास क्लॉक जो है वो 20th जून 2015 हो। सो इन दोनों का पहले सिंक्रोनाइज्ड होना जरूरी है, क्लॉक्स का सिंक्रोनाइज्ड होना जरूरी है। जब बॉब ये सेशन की रिसीव करता है तो टाइम स्टैम्प देखता है कि ये टाइम स्टैम्प अगर करेक्ट है, ओल्ड टाइम स्टैम्प अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये पुरानी सेशन की है, ये ओल्ड सेशन की है और ये रिप्ले अटैक हो सकता है, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर सेम टाइम स्टैम्प की है जो कि उसके रिसीव हुई है, सो आप ओल्ड सेशन की के रिप्ले अटैक से इस तरीके से बच सकते हैं। वन वे ऑथेंटिकेशन भी एक और मैकेनिज्म है जिसमें रिक्वायर्ड व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट इन कम्युनिकेशंस एट सेम टाइम। आपको बाज़-औक़ात वन वे ऑथेंटिकेशन भी चाहिए होती है। अब तक जो हम बात कर रहे थे मैसेज ऑथेंटिकेशन की, ठीक है, उसमें सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पर मौजूद थे, ठीक है, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन
दोनों प्रेजेंट थे। अब ये सिनेरियो भी हो सकता है कि सेंडर जो है वो अवेलेबल है, रिसीवर एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं है, और लेटर ऑन रिसीवर जो है वो जब आएगा तो वो मैसेज रिसीव कर लेगा, जिसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ईमेल हो सकती है। जब आप ईमेल अपने किसी दोस्त को भेजते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम पर ईमेल भेज रहे हैं आपका दोस्त उसी टाइम पर फिजिकली मौजूद हो, बल्कि वो लेटर ऑन, एक दिन बाद, एक घंटे बाद, चंद घंटे बाद, वो जब भी अवेलेबल होगा वो अपनी ईमेल चेक कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर केस में वन वे ऑथेंटिकेशन में हम क्या करते हैं, हैव हेडर इन क्लियर सो कैन बी डिलीवर्ड बाय ईमेल सिस्टम। हम उस ईमेल मैसेज के हेडर में सर्टेन इंफॉर्मेशन इस तरीके से ऐड करते हैं कि ईमेल सिस्टम जब उसको सेंड करता है सो ये ऑथेंटिकेट भी कर देता है कि ये सेंडर एक्चुअल सेंडर है या किसी अटैकर की तरफ से आए हैं। इस ईमेल सिस्टम की दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक है प्रोटेक्टेड बॉडी कंटेंट्स और दूसरा है सेंडर ऑथेंटिकेशन। मतलब आपको ना सिर्फ मैसेज के कंटेंट्स को सिक्योर करना है, बल्कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि सेंडर एक्चुअल सेंडर है, कोई स्पैम आपको ईमेल नहीं भेज रहा, कोई अटैकर आपको ईमेल नहीं भेज रहा। सो आप बॉडी कंटेंट्स या ईमेल के जो कंटेंट्स हैं या ईमेल इटसेल्फ कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सो ईमेल मैसेजेस शुड बी इनक्रिप्टेड एंड मेल हैंडलिंग सिस्टम शुड नॉट बी इन पोजेशन ऑफ डिक्रिप्टिंग की। आप थोड़ा सा सिनेरियो आपको ऐसे बता देता हूं, सेंडर है, ईमेल सिस्टम है और रिसीवर है। अलाइस बॉब को ईमेल करना चाहती है, ठीक है, लेकिन बॉब अभी प्रेजेंट नहीं है। सो ईमेल का फिनोमेना हमें पता है कि जब आप ईमेल भेजते हैं सो ईमेल सिस्टम में ये मेल सेव रहती है, उस वक्त तक सेव रहती है जब तक कि आप लॉग इन करके यहां से कंटेंट्स यहां पे अपनी ईमेल डाउनलोड नहीं कर लेते। तो ये ईमेल सिस्टम पूरा लाइफ टाइम के लिए मौजूद रहता है। सो जब अलाइस बॉब को ईमेल कर रही है और बॉब फिजिकल प्रेजेंट भी नहीं है, सो यहां पे मैसेज ईमेल सिस्टम पर जाएगा। सो बॉडी कंटेंट्स को इंश्योर करने का, प्रोटेक्ट करने का तरीका यह है कि जब अलाइस ईमेल भेजेगी, यहां पे ईमेल पड़ी होगी, ये सिस्टम, ये ईमेल सर्वर्स इस ईमेल के कंटेंट्स को डिक्रिप्ट नहीं कर सकेंगे। ये जरूरी है कि ईमेल सर्वर ईमेल के कंटेंट्स को डिक्रिप्ट ना कर सकें, क्योंकि अगर सर्वर ईमेल के कंटेंट्स डिक्रिप्ट कर ले या सर्वर के पास वो डिक्रिप्टिंग की आ जाए तो सारे मैसेजेस सिर्फ अलाइज इस ईमेल सर्वर को यूज नहीं करती, बल्कि हजारों यूजर इस ईमेल सर्वर को यूज कर रहे हैं, और अगर डिक्रिप्टिंग कीज ईमेल सर्वर पर आना शुरू हो जाएं तो ईमेल सर्वर्स पर बड़े इजीली अटैक हो सकते हैं और सारी ईमेल कंटेंट्स अटैकर्स निकाल सकते हैं। सो ये जो मेल हैंडलिंग सिस्टम है, यहां पे डिक्रिप्टिंग की नहीं होगी, बल्कि डिक्रिप्टिंग की एक्चुअल रिसीवर के पास ही होगी। सो अगर कंटेंट्स पड़े भी हैं, ठीक है, लेकिन वो मीनिंगलेस हैं, क्योंकि उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए डिक्रिप्टिंग की चाहिए, और डिक्रिप्टिंग की हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट है कि इस मेल हैंडलिंग सिस्टम के पास, इस बीच वाली एंटिटी के पास डिक्रिप्टिंग की नहीं होगी। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सेंडर ऑथेंटिकेशन या सेंडर ऑथेंटिकेटेड रिसिपिएंट वांट सम एश्योरेंस दैट मैसेजेस फ्रॉम एज्ड सेंडर। अब ये बॉब ने जब ईमेल रिसीव की है, बॉब उस टाइम पे मौजूद नहीं था जब अलाइस ने ईमेल भेजी, ठीक है, ये तो इंश्योर हो गया कि ईमेल सिस्टम या ईमेल हैंडलिंग सिस्टम के पास डिक्रिप्टिंग की नहीं है, डिक्रिप्टिंग की सिर्फ बॉब के पास है, ठीक है, लेकिन ये भी इंश्योर करना एक रिक्वायरमेंट है कि ये मैसेज अलाइस की तरफ से आया है। क्लेम किया जा रहा है कि अलाइस की तरफ से है, लेकिन इस चीज को इंश्योर भी करना होता है कि ये मैसेज एक्चुअली अलाइस की तरफ से ही है और किसी दूसरे यूजर जो कि अपने आप को अलाइज होने का क्लेम कर रहा है उसकी तरफ से ये मैसेज नहीं है। हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, डीएसएस। डीएसएस क्या करता है? यूएस गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिग्नेचर स्कीम है। ये डिजिटल सिग्नेचर की हमने बात की, हम काफी स्लाइड्स पहले हमने डिजिटल सिग्नेचर, और पिछले लेक्चर में भी हमने डिजिटल सिग्नेचर की बात की। डिजिटल सिग्नेचर का एक स्टैंडर्ड है जिसको यूएस गवर्नमेंट ने
अप्रूव किया। सो आपने डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये डिज़ाइन हुआ था निस्ट एंड एनएसए अर्ली 90s में, और इसकी फॉर्मल पब्लिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड की 1991 में हुई थी। इसकी फिर रिविजन्स आई 1993 में, 1996 में एंड देन ईयर 2000 में। ये SHA हैश एल्गोरिदम को यूज़ करता है, ये डिजिटल सिग्नेचर हैश एल्गोरिदम को यूज़ करता है, और डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड जो है इज द स्टैंडर्ड एंड DSA इज द एल्गोरिदम। स्टैंडर्ड तो बन गया है DSSS के नाम से, लेकिन ये स्टैंडर्ड काम किस चीज पर कर रहा है, किस एल्गोरिदम पर कर रहा है? जिस एल्गोरिदम पर वो काम कर रहा है उस एल्गोरिदम का नाम है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। ठीक है, सो डिफरेंस DSS और DSA का ये है कि डिजिटल सिग्नेचर का स्टैंडर्ड तब बना है जबकि डिजिटल सिग्नेचर का एक एल्गोरिदम था। ये एल्गोरिदम फॉर्मलाइज हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, जिसको आपने नाम दे दिया DSS का। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने फीस्टल साइफर में देखा था, हॉर्स फीस्टल एक साइंटिस्ट था जिसने एक एल्गोरिदम बनाया। ये एल्गोरिदम लेटर ऑन एक स्टैंडर्ड बन गया और इसका नाम बन गया DES। सो बिल्कुल इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर का एक एल्गोरिदम था DSA, जो कि बाद में स्टैंडर्डाइज हो गया और उसका नाम हो गया DSS। सो 2000 में इसकी रिविजन्स हुई। इन रिविजन्स में इंक्लूड्स अल्टरनेटिव्स, RSA एंड इलिप्टिक कर्व सिग्नेचर वेरिएंट्स। ये मजीद इसमें कुछ वेरिएशंस आई हैं। DSS RSA की तरह ही है, स्लाइट डिफरेंट है। RSA को हमने डिटेल में देखा था कैसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। ठीक है, सो RSA अप्रोच में क्या होता है, आपका मैसेज है, ठीक है, उसके बाद आपकी प्राइवेट की को यूज करते हुए मैसेज एनक्रिप्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये मैसेज अब एनक्रिप्टेड है, रिसीवर साइड पे डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, और कंपेयर किया जाता है, सेम वैल्यूज हैं, कुछ हैश वैल्यूज भी आपने इसमें यूज किए हैं और कंपेयर किया जाता है। अगर सेम वैल्यूज हैं तो मैसेज को कंसिडर कर लिया जाता है, अदरवाइज मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। DSS में क्या हो रहा है, DSS में मैसेज है, ठीक है, उसमें एक इंस्टेड ऑफ अ प्राइवेट की एक सिग्नेचर ऐड कर दिया जाता है। ये सिग्नेचर प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद ये मैसेज भेजा जाता है, रिसीवर साइड पे इसी को रिकैलकुलेट किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। सो अगर कंपैरिजन में सेम वैल्यूज आ गई हैं तो इस मैसेज पर ट्रस्ट कर दिया जाता है। सो DSS और RSA का डिफरेंस ये है कि यहां पे प्राइवेट की और हैश फंक्शन को यूज किया जा रहा है, जबकि DSS में प्राइवेट की और पब्लिक की को भी यूज किया जा रहा है और एक सिग्नेचर बनाया जा रहा है। ठीक है, वहां पे एनक्रिप्टेड मैसेज आता है, यहां पे साइंड मैसेज आता है। और बाकी ये चीज कॉमन ही है कि दोनों साइड पर कंपैरिजन होता है। अगर वैल्यू सेम है तो मैसेज को पर ट्रस्ट कर दिया जाता है, मैसेज सेम है तो वैल्यू सेम है तो मैसेज पर ट्रस्ट कर दिया जाता है, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दिया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम की डिटेल ये है कि ये ग्लोबल पब्लिक की को यूज करता है, Q जो कि 160 बिट प्राइम नंबर है, P जो कि 512 एंड 1024 बिट्स के दरमियान इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है दैट Q डिवाइड्स P-1। ये वही फिनोमेना, वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने RSA में पढ़े थे। G वो ग्लोबल पब्लिक की है। ये ग्लोबल पब्लिक की कैसे आती है, हैश वैल्यू ऑफ P-1 Q मॉड ऑफ P के साथ, एंड H इज एन इंटीजर बिटवीन 1 to P-1 एंड G इज ग्रेटर देन 1। सो मतलब आपने ये ग्लोबल पब्लिक की एक हैश वैल्यू से निकाली है। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर में, सो ये जो G आप देख रहे हैं, ये G ग्लोबल पब्लिक की है। प्राइवेट पब्लिक की को भी यूज किया जा रहा है, प्राइवेट की ऑफ A को भी यूज किया जा रहा है और ग्लोबल पब्लिक की को भी यूज किया जा रहा है। यही ग्लोबल पब्लिक की रिसीवर साइड पे दोबारा कैलकुलेट की जाती है और कंपेयर की जाती है, और अगर वैल्यू सेम है तो मैसेज पर ट्रस्ट कर दिया जाता है। सो ईच यूजर जनरेट अ प्राइवेट एंड पब्लिक की विद दीज नंबर्स। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट की इज X रैंडमली चोजन फ्रॉम 1 to P-1, बिल्कुल RSA में भी इसी तरह होता था। एंड पब्लिक की इज Y विच इज Y इज इक्वल टू G of X mod of P। पब्लिक की आपने डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम में इस तरीके से जनरेट की। जब आप डिजिटल सिग्नेचर की क्रिएशन की बात करते हैं, टू साइंड अ मैसेज M, ठीक है, एक मैसेज M है
जो कि सेंडर भेजना चाहता है और इसको उसने डिजिटल साइन करना है, सो क्या करता है, पेपर में तो हमने देखा था पेपर सिग्नेचर में वो डॉक्यूमेंट के एंड में साइन कर देता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में काम ये है कि वो फिजिकली या कोई पेपर साइन की तरह साइन नहीं करता, बल्कि जनरेट्स अ रैंडम सिग्नेचर की के को जनरेट करता है, एक की के को जनरेट करता है, और ये के रैंडम होता है और इस तरीके से रैंडम होता है कि बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज एंड नेवर बी रीयूज्ड। डीएसए में जो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया गया है वो एक सिग्नेचर की के थ्रू किया गया है। ये सिग्नेचर की वन टाइम यूज होती है, एक दफा ये की यूज हो गई, इसके बाद ये दोबारा कभी यूज नहीं होती। इसके बाद सिग्नेचर पेयर को कंप्यूट किया जाता है इस फॉर्मूला के तहत, R इज इक्वल टू G ऑफ K mod ऑफ P एंड होल mod ऑफ Q एंड S, ठीक है, विच इज K to the power of -1 hash value of the message plus X of R and mod of Q। कंप्यूट करने के बाद, सिग्नेचर कंप्यूट करने के बाद सेंडर मैसेज के साथ वो R और S जो है वो मैसेज के अलोंग भेज देता है। सो सिंपल मैसेज था जिसको डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद अब मैसेज के साथ R और S की वैल्यूज भी जा रही हैं। R और S कैसे कैलकुलेट हुआ है, कैसे कंप्यूट हुआ है, ये इस फॉर्मूले में यहां पे बता दिया गया है। अब रिसीवर साइड पे जब वेरिफिकेशन होती है, रिसीवर साइड ने रिसीव किया, मैसेज भी रिसीव किया, R और S भी रिसीव किए हैं, ठीक है। रिसीवर इन सारी वैल्यूज को रिकैलकुलेट करता है और V निकालता है, V निकालता है। अगर V की वैल्यू सेम है R की वैल्यू के, इसका मतलब यह है कि ये डिजिटल सिग्नेचर करेक्ट है और इस मैसेज पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट हो गई, इसका मतलब यह है कि मैसेज कैन नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड एंड द मैसेज शुड बी डिस्कार्डेड। सो कहने का मतलब यह है कि डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए मैसेज के साथ वैल्यू R और S को कंप्यूट करके मैसेज के साथ भेजा जाता है। रिसीवर साइड पे रिसीवर इसको रिकैलकुलेट करता है और वैल्यू निकालता है, जो भी फंक्शंस थे, जो भी वैल्यूज थी, इनको रिकैलकुलेट करता है और V की वैल्यू निकालता है। अगर V की वैल्यू वही निकली है जो कि R की वैल्यू थी, इफ V एंड R इनका कंपेयर किया जाता है, अगर ये सेम है, दिस मीन्स दैट द मैसेज कुड बी ट्रस्टेड। ये V कैसे निकलता है, किस फॉर्मूला के तहत निकलता है, इसकी डिटेल इन 4 इक्वेशंस में दी गई हैं, जो कि W है, जो कि S-1 mod ऑफ Q है, U1 है जो कि हैश वैल्यू ऑफ मैसेज W है एंड mod ऑफ Q है, एंड U2 है जो कि RW ऑफ mod ऑफ Q है, और उसके बाद ग्लोबल U1 और Y ऑफ U2 है, mod ऑफ P एंड mod ऑफ Q है। सो V आपने इस तरीके से निकाला, रिसीवर ने V निकाला, सेंडर ने R निकाला, V और R की वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, अगर ये सेम है सो मैसेज वेरीफाइड है, मैसेज पर ट्रस्ट किया जा सकता है। Let us proceed to authentication applications. We have got 2 types of authentication applications, Kerberos and X.509. So we have been talking about message authentication, which could be accomplished. Message authentication could be accomplished in 3 different ways: message authentication functions, message authentication protocols, and message authentication applications. So we discussed in message authentication functions, there are MAC, message authentication code, there are message encryption, public key and private key, and there are hash values. In message authentication protocols, we talked about Needham-Schroeder protocol, which makes use of exchange of session and master key, and both parties can communicate with each other. We also talk about another protocol, Newman 93 and Danning 81, which are modifications, which also helps in the message authentication protocol. Now the third part is authentication applications, and there are 2 types of authentication applications that we are going to discuss. One is Kerberos and the other one is X.509. Let us have a look on each of them. So Kerberos क्या चीज है? Kerberos सिंपली एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है, ठीक है।
जिस तरह ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स थे, जिस तरह ऑथेंटिकेशन फंक्शंस थे, इस तरह कैरिबरोस एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है दैट वाज डेवलप्ड एट MIT जो कि वर्ल्ड रेनाउंड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे वर्ल्ड टॉप इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ये डेवलप हुआ था। कैरिबरोस यूजेस ट्रस्टेड की सर्वर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इस ऑथेंटिकेशन सर्विस के लिए जरूरी है कि एक ट्रस्टेड सर्वर सिस्टम को यूज किया जाए, मतलब यहां पर भी एक थर्ड पार्टी यूज होगी। प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड प्राइवेट की थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जी, कैरिबरोस की ब्यूटी ये है, अब यहां पे देखें 3 चीजें हैं, प्राइवेट की, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। सो इन तीनों की कॉम्बिनेशन कैरिबरोस यूज करता है। वैसे तो हमने देखा है कि प्राइवेट की जब आप बात करते हैं सो आपको एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी चाहिए होती है जो कि आपको प्राइवेट की प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये प्राइवेट की फिर दोनों पार्टीज यूज करते हुए मैसेज इंक्रिप्शन करती हैं। सो प्राइवेट की भी यहां पे यूज हो रही है। थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, आप जिस थर्ड पार्टी से वो प्राइवेट की ले रहे हैं उसको भी ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। और तीसरी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ऑब्वियसली सेंडर और रिसीवर, अलाइस और बॉब दुनिया के 2 मुख्तलिफ कोनों में बैठ सकते हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में मुख्तलिफ लोकेशंस पर बैठ कर ये कैसे की एक्सचेंज करेंगे इन्वॉल्विंग, कैसे प्राइवेट की एक्सचेंज करेंगे इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी, दैट दीज डिटेल्स हैव बीन एड्रेस्ड इन कैरिबरोस। सो होता क्या इसमें, अलाउज यूजर्स एक्सेस टू सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू नेटवर्क। यूजर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू सर्विसेज को एक्सेस करते हैं विदाउट नीडिंग टू ट्रस्ट ऑल वर्क स्टेशंस, ठीक है। एक नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जिसमें ढेर सारी डिवाइसेस हैं, वर्क स्टेशन हैं, नोड्स लगे हुए हैं, वहां पे कम्युनिकेशन करनी है मुख्तलिफ नोड्स के साथ। अब जरूरी नहीं है कि आप हर वर्क स्टेशन को ऑथेंटिकेट करें, क्योंकि हर वर्क स्टेशन को ऑथेंटिकेट करना इनकन्वीनियंट है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो ये क्या करता है, रादर ऑल ट्रस्ट अ सेंट्रल ऑथेंटिकेशन सर्वर। बजाय इसके कि आपने उस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में 100 वर्क स्टेशन से बात करनी है और आप हर वर्क स्टेशन को ऑथेंटिकेट करें, आप सारे वर्क स्टेशन को ऑथेंटिकेट नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ एक सर्वर को ऑथेंटिकेट करते हैं या सर्वर पर आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो सर्वर पर आप भी ट्रस्ट कर रहे हैं, सर्वर पे बाकी 100 वर्क स्टेशन भी ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर अगर आपको कह रहा है कि वर्क स्टेशन नंबर 20 ठीक है, इससे बात की जा सकती है, सो here you go, you don't explicitly need to trust सर्वर वर्क स्टेशन नंबर 30, ठीक है। मतलब आप ये कहें कि एक ये जो ट्रस्ट सर्वर है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है, ठीक है, ये बाकी जितनी भी नोड्स हैं उस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में उनकी जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है। जिसकी जिम्मेदारी ऑथेंटिकेशन सर्वर लेगा, ठीक है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और उससे कम्युनिकेशन की जा सकती है। सो इसके कैरिबरोस के 2 वर्जन्स हैं, कैरिबरोस 4 एंड कैरिबरोस 5, ठीक है। थ्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, ये कैसे होता है, हमें एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में मसला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में मसला क्या हो सकता है, इसको देखते हैं। अ यूजर गेन एक्सेस टू अ वर्क स्टेशन एंड प्रिटेंड टू बी अनदर यूजर फ्रॉम दैट वर्क स्टेशन। होता यह है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में कि एक यूजर है, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है जिसमें मैं, आप, बाकी लोग बैठे हुए हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सो एक यूजर, एक अटैकर फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम की पर जो है वो एक्सेस कर लेता है, मेरे सिस्टम में वो पेनिट्रेट कर लेता है एंड प्रिटेंड टू बी अनदर यूजर फ्रॉम दैट वर्क स्टेशन, और मेरे सिस्टम को वो यूज करते हुए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कोई और यूजर है। मेरे सिस्टम को यूज करते हुए वो ये शो करता है, ये प्रेजेंट करता है कि वो कोई और यूजर है। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास वर्क स्टेशन ए है, ठीक है, यहां से जो भी कम्युनिकेशन जाएगी वो ए की तरफ से होगी। अब अटैकर क्या करता है कि मेरे सिस्टम में आता है, मेरे सिस्टम में आना ये एक थ्रेट है, और मेरे सिस्टम में आकर फिर जो मैसेजेस भेजे जाते हैं वो ए की तरफ से नहीं जाते, वो फिर मेरे सिस्टम को यूज करते हुए वो अटैकर ये शो करता है, ये प्रिटेंड करता है कि ये मैसेजेस बी की तरफ से जा रहे हैं।
सो इसमें डबल अटैक हो गया, एक वो मेरे सिस्टम में आ गया, दूसरा मेरे सिस्टम को वो यूज करते हुए मैसेजेस बी बना के भेजा जा रहा है कि ये मैसेजेस जो भी जा रहे हैं ये ए की तरफ से नहीं है, ये बी की तरफ से हैं। ऑल्टर द नेटवर्क एड्रेस ऑफ वर्क स्टेशन, हर वर्क स्टेशन का एक आईपी एड्रेस है। सो अटैकर क्या करता है कि उस आईपी एड्रेस को चेंज करता है। अगर ए की तरफ से मैसेज जा रहे हैं, कैसे पता चलता है कि ये मैसेज ए की तरफ से है? आईपी एड्रेस ऑफ दी ए की वजह से। सो ये प्रिटेंड करने के लिए कि ये मैसेज बी की तरफ से जा रहे हैं, वो ए का आईपी एड्रेस रिमूव करता है, बी का आईपी एड्रेस उस सिस्टम में ले आता है। सो दैट रिक्वेस्ट सेंड विल अपीयर फ्रॉम इम्पर्सनेट सिस्टम। लगेगा यूं कि ये रिक्वेस्ट बी की तरफ से आई है, क्योंकि नेटवर्क में आपके पास कोई और तरीका नहीं है ये चेक करने का कि ये मैसेज कहां से आया है सिवाय आईपी एड्रेस के। आईपी एड्रेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैसेज कहां से आया है। यहां पे अटैकर क्या कर रहा है कि आईपी एड्रेस ही चेंज कर रहा है। सो आईपी एड्रेस के चेंज होने से यही पता चल रहा है कि जिस आईपी एड्रेस से इंफॉर्मेशन आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, वो ही इसका ऑनर है। मे ईव्सड्रॉप ऑन एक्सचेंजेस एंड यूज द रीप्ले अटैक टू गेन एंट्रेंस टू द सर्वर और टू डिस्टर्ब द ऑपरेशंस। मजीद मुख्तलिफ काम ये हो सकते हैं, ईव्सड्रॉपिंग कर सकता है, रीप्ले अटैक कर सकता है, सर्वर पर एक्सेस गेन करके सर्वर को क्रैक कर सकता है या सर्वर को डिसरप्ट कर सकता है। ये सारे काम यूजर कर सकता है, एक अटैकर कर सकता है। मतलब इनमें से एक काम भी हो सकता है और इनमें से ये सारे काम भी एक यूजर जो है वो या एक अटैकर उस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, उस नेटवर्क में कर सकता है। ऑथेंटिकेशन एट ईच सर्वर, क्या आप हर सर्वर पर ऑथेंटिकेशन करेंगे? Kerberos is used to authenticate user to servers and servers to users. अब ये सर्वर है, यहां पर ढेर सारे यूजर्स हैं, ठीक है। इन यूजर्स में से किसी एक यूजर ने, अटैकर ए ने या अटैकर एक्स ने सिस्टम ए को यूज किया, यूजर ए का सिस्टम ए यूज किया, यहां पे आईपी एड्रेस उसने चेंज किया और ये प्रिटेंड किया कि ये सिस्टम एक्स की तरफ से नहीं है, ये सिस्टम ए की तरफ से नहीं है, बल्कि ये किसी और एंटिटी, लेट से किसी और आईपी एड्रेस, किसी और वर्क स्टेशन, एज्यूमिंग कि ये आईपी एड्रेस सिस्टम बी का है, बी का आईपी एड्रेस लगा के ये सर्वर को एक्सेस कर रहा है। जब बी को उसने एक्सेस किया, सर्वर के पास ये प्रिविलेजेस थे कि सर्वर बी को ढेर सारी रिप्लाई करेगा, बी पर वो ट्रस्ट करता है, बी को उसने परमिशंस दी हुई हैं। सो एक्चुअली अब तो मैसेज एक अटैकर की तरफ से आया, जब वो सिस्टम में पेंट्रेट उसने कर लिया, ठीक है, तो यहां पे वो सर्वर को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। सो Kerberos सिस्टम क्या करता है कि सर्वर यूजर्स को ऑथेंटिकेट करता है सर्वर के लिए और सर्वर को ऑथेंटिकेट करता है यूजर्स के लिए। यह भी हो सकता है कि यूजर्स को कोई मैसेजेस सर्वर की तरफ से रिसीव हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली सर्वर की तरफ से ना हो, वो किसी अटैकर की तरफ से हो। सो Kerberos टू वे में काम करता है, ऑथेंटिकेट यूजर्स टू सर्वर्स एंड सर्वर्स टू यूजर्स। सो इस तरीके से Kerberos काम करता है। Kerberos के बारे में मजीद डिटेल क्या है, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी हम प्रोसीड करते हैं समरी ऑफ टुडेज लेक्चर पर। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड and digital signature algorithm. We also had a look on authentication applications, and more precisely we talked about an authentication application which is Kerberos. So Kerberos authenticate users to servers and servers to users. It has got two versions, Kerberos version 4 and Kerberos version 5. What are more details of Kerberos? Inshallah, we will be discussing this in our next lecture, and here are the contents of our next lecture. So our discussion on Kerberos will continue, and we will explore its different versions, and we will also discuss certificates and certification authority, CA. So these contents are going to be the part of our next lecture. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details. Bye for now, and Allah Hafiz.